آغاز کر دیا گیا۔ نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش کے لیے 4 کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیمز تشکیل دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہر ٹیم میں 4 تفتیشی افسر، 4 پروسیکیوٹرز اور 1 کیس آفیسر کو تعینات کیا گیا ہے۔ ہر کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میں 9 افسر تعینات کیے گئے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش کے لیے ملتان، کوئٹہ، کراچی نیب کے افسران بھی شامل کیے جائیں گے۔ نیب ہیڈ کوارٹرز کی پرانی عمارت کو جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے۔ احسان صادق کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی نیب ٹیم سے ملاقات اور بریفنگ۔ ملاقات میں تحقیقات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کوارڈینیشن کو بہتر بنانے پر اتفاق ہوا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات دیں گے نمائندہ نیونس محمد اویس۔ جی آپ تفصیلیں آگاہ کیجیے گا ان کمیٹیوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم سے جے آئی ٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ملاقات میں جے آئی ٹی کے تمام ارکان موجود تھے۔ ملاقات میں تحقیقات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مزید کوارڈینیشن کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی کی جانب سے جو رپورٹ میں دیے گئے شواہد تھے اس حوالے پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ ڈی جی نیب عرفان منگی جو ہے ٹیموں کی سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ نیب ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نیب نے جعلی اکاؤنٹ کیس کی تفتیش کے لیے 4 کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ہر ٹیم میں 4 تفتیشی افسر، 4 پروسیکیوٹر اور 1 کیس افسر تعینات کیا گیا ہے۔ ہر کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میں 9 افسران تعینات ہوں گے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش کے لیے ملتان، کوئٹہ اور کراچی نیب کے افسران بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب ہیڈ کوارٹرز کی پرانی عمارت کو جعلی اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے۔ احسان صدیق کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے نیب ٹیم کو خصوصی آج بریفنگ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موصول ہونے کے بعد آصف علی زرداری اور فریال تارپور کے کیسز کے حوالے سے چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کو 16 ریفرنسز تیار کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی تھی۔ تاہم اس حوالے سے آج اہم پیش رفت بھی ہوئی اور نیب کے ڈی جی نیب نے آج راولپنڈی آفس کا دورہ بھی کیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ نقیب اللہ قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ نقیب اللہ سمیت 4 افراد کا قتل ماورائے عدالت قرار دیا گیا ہے۔ نقیب اللہ، صابر، نظر جان اور اسحاق کو داعش اور لشکر جنگی کے دہشت گرد قرار دے کر ویران مقام پر قتل کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالات، واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ مقابلہ خود ساختہ، جھوٹا اور بے بنیاد تھا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ اور دیگر کے خلاف درج 5 مقدمات ختم کرنے کی رپورٹ بھی منظور کر لی ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور 5 قتل جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل قرار دیے گئے ہیں۔ نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نمائندہ نیونس جنید شاہ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی جنید، آپ بتائیے گا۔ دیکھیے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے نقیب اللہ کیس میں۔ نقیب اللہ قتل کیس جب یہ واقعہ ہوا تھا تو پولیس مقابلہ اور اقدام قتل اور دھماکہ خیز مواد کے 5 مقدمات درج کیے گئے تھے، جو کہ نقیب اللہ، صابر، نظر جان، اسحاق کے خلاف جو ہے وہ درج کیے گئے تھے۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان جو ہے وہ 500 دہشت گردوں کو داعش کا اور لشکر جنگی کا دہشت گرد قرار دے کر انہیں مقابلے میں مارا گیا۔ تاہم جب یہ اس مقدمے میں جو ہے وہ ری انویسٹیگیشن ہوئی اور جب ری انویسٹیگیشن میں پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تو ان مقدمات کو جو ہے وہ بی کلاس قرار دیا گیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے وہ ختم کیا جائے، رپورٹ منظور کی جائے، جس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے وہ پولیس سے جو ہے تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی، جبکہ وکلا کے بھی دلائل سنے تھے۔ آج عدالت کی جانب سے نقیب اللہ سمیت 4 افراد کے قتل کے مقدمے میں جو ہے ختم کرنے کی رپورٹ منظور کر لی ہے اور مقدمات جو ہے وہ جھوٹے قرار دے کر جو ہے وہ ختم کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ جی شکریہ، تفصیل سے آگاہ کیا آپ نے۔ سندھ سرکار کا حادثات اور ثانیات میں زخمی ہونے والوں کے لیے بڑا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حادثے یا دہشت گردی کے واقعے میں زخمی ہونے والوں کے پرائیویٹ علاج کا بل بھی صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ عمل قتل کیس سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ صوبے کے تمام نجی ہسپتال جنہیں ہسپتال کا سٹیٹس حاصل ہے وہ مریضوں یا لواحقین سے معاوضے کا تقاضا نہیں کر سکیں گے۔ حکومت پولیس اصلاحات کے لیے بھی حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں زخمیوں کے لازمی اور فوری علاج کے لیے عمل بل متعارف کروا دیا گیا۔ اگر کوئی بھی شخص انجر ہو جائے کسی بھی وجہ سے، نارملی ہوتا ہے یہ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ میڈیکو لیگل کیس ہے، یہ پولیس کی رپورٹ لے کے آئیں، اس کے بغیر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے۔
اور اس کی وجہ سے قیمتی جانیں جاتی ہیں. تو ہم نے یہی اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹاپ پرائرٹی دی جائے کہ جو زخمی ہے, جو انجر ہوا ہے کسی انسیڈنٹ میں, سب سے پہلے اس کا علاج ہونا ضروری ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بل کیا ہے کہ جی سب سے پہلے تو آپ نے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے, اور اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ اسپتال, پرائیویٹ اسپتال جس کو اسپتال کا سٹیٹس دلانا ہے اپنے آپ کو, انہوں نے وہ فیسلٹیز ادھر رکھنی ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پیشنٹ کے وہ پیسے نہیں مانگیں گے, اس لیے کہ یہ حکومت کا کام ہے, اینڈ دی گورنمنٹ ول کمپنسیٹ جو بھی انجرڈ جاتا ہے اس کے علاج کے لیے اس اسپتال کو انیشلی جو اس کو میڈیکل لیگل اسسٹنس جو بھی میڈیکل اسسٹنس دینی ہے. جبکہ مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب نے کہا کہ نجی اسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات کا بل حکومت ادا کرے گی. بل سے متعلق سندھ حکومت پوری ذمہ داری ادا کرے گی. انہوں نے کہا کہ تمام اسپتالوں میں ایمبولینس سروس بھی لازمی قرار دے رہے ہیں, جبکہ سندھ ہیلتھ کیئر مشن سے متعلق بھی تمام خدشات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے. مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ گشت کرنے والے اہلکاروں کو بڑا اسلحہ نہ دینے کی شک بھی اس میں شامل ہے. 70% احتیاط بدل دیے گئے ہیں. عمل کے والدین نے حکومت کا شکریہ ادا کیا. عمل کے والد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جا رہا ہے. ہماری کوشش کے سبب آج قانون سازی ہو رہی ہے. عمل کی والدہ نے کہا کہ بیٹی کی قربانی سے اگر شہر میں بہتری آئی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں. بجٹ سپیچ میں چیف منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے جس کے اندر یہ لازمی ہوگا تمام ہسپتالوں کے لیے, چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو یا پرائیویٹ اسپتال ہو, کہ وہ ایسے جو انجری شدہ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. آج ہمارے ساتھ عمل عمر کے والدین موجود ہیں جو کہ آج سندھ اسمبلی آئے تھے اس پروسیس کو دیکھنے کے لیے. تو سندھ گورنمنٹ کا وہ وعدہ جو چیف منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا تھا, اس وعدے کی تکمیل کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ غالباً کوئی 3 ہفتے پہلے سندھ کابینہ نے ایک ڈرافٹ لاء کی منظوری دی تھی, اور آج الحمدللہ وہ قانون جو ہے سندھ اسمبلی میں ٹیبل کر دیا گیا ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ایکشن لیا گیا ہے, سٹارٹ ہوا ہے, اور اس پہ کام بھی اسی طرح سے ہی, اسی جو کمٹمنٹ کیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے اسی طرح سے کام بھی کیا جائے. یہ صرف ایک بل ایک ٹیبل پہ ایک فائل کی طرح رہ نہ جائے, اور اس پہ تمام وہ ڈپارٹمنٹس جو اس میں انوالوڈ ہیں, جہاں جہاں اس کو فارورڈ کرنا ہے اس پہ اسی طرح سے کام کیا جائے. سندھ حکومت کی جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے, جس طرح سے انہوں نے ہماری بات بھی سنی اور اپنا کنسرن شو کیا, ہم بہت گریٹفل ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہم بہتری دیکھیں, اور اگر یہ بہتری ہماری عمل کی قربانی سے آنی ہے تو شاید سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شہر میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تجاوزات کا معاملہ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی ہے. جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ہمیں لوریاں نہ سنائیں, آپ کی لوریوں میں آنے والے نہیں. عدالت نے حکم دیا کہ سندھ حکومت شہر کی تباہی پر ماہرین سے مشاورت کرے, بتایا جائے کہ شہر کی بے ہنگم اور غیر قانونی عمارتوں کو کیسے گرایا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سندھ حکومت سے سفارشات طلب کی ہیں کہ کس طرح سے بے ہنگم اور غیر قانونی عمارتوں کو گرایا جائے. سندھ حکومت نے کراچی کی تباہی پر اظہار افسوس کیا اور 1950 کا کراچی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سندھ حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی ہے. ابھی آپ کو براہ راست پنجاب اسمبلی باہر لیے چلیں گے, جہاں حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. نہیں تھے, اس سے حکومت کی سیریسنس کا اندازہ لگا لیجئے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ قوم کی تسلی نہیں ہوگی جب تک ایک اعلیٰ سطح جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا اور حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. تو اس لیے اس واقعے کو قطعاً سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کوئی سیاسی بات ابھی تک نہیں کی, ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس کے باہر بھی, اور میں نے یہی کہا ہے لاء منسٹر کو کہ آپ جلد از جلد قوم کے سامنے حقائق لے کے آئیں, لیکن یہ جے آئی ٹی سے بات بننے والی نہیں ہے. اس کے لیے
जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बताइएगा कि अंदर जो गुफ्तगू हुई है बेशक ना शेयर करें, लेकिन क्या उस ब्रीफिंग पे आपको इत्मीनान था या आपके तहफ्फुज़ात अभी भी बरकरार हैं? सब इसके साथ जोड़ लें कि आपके ख्याल में क्या क्या लूप होल रह गए हैं, जो टेक्निकल लूप होल है, जो आप समझते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। देखें, अपना जो है ना, वो मैं एक ये कह सकता हूँ कि जो मैंने बात की है, जो भी अंदर हमें ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद मैं अपना जो है ना वो अमीन हूँ पार्लिमानी रवायात का, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आज ज़्यादा ज़रूरत महसूस की है मैंने कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए, और जब अपना जो है ना वो पुलिस वाले जो हैं और जो बाकी इदारे हैं वही जेआईटी का ऐसा बनेंगे तो फिर हक सच कहाँ से आएगा सामने। और वही वीडियो जो आप सब ने देखी है जिसमें बस के मुसाफिर जो है वो रनिंग कमेंट्री करें, वो अपने सामने वक़ुआ जो है वो रूनुमा होता देख रहे हैं। और प्लीज़ खुदारा ये बात कहना हुकूमती तरफ से कि जी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, खुदारा जब मैं कह रहा हूं कि हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। और ज़रा महसूस करें ऐसे बयान देने वाले कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो कि उनके साथ अगर ये वाक़या पेश आया होता, क्या अपना जो है वो हादिया और अपना जो है वो दूसरी उसकी बहन और उसका भाई। पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साहिवाल वाक़े पर पूरी कौम इस वक्त बेचैनी का शिकार है। जब तक मुल्जिमान को फांसी नहीं होती, वाक़े के ज़ख्म ताज़ा हैं, और जब तक तमाम पहलुओं से तहकीकात मुकम्मल होकर एतमाद में नहीं लिया जाता, उस वक्त तक ये मामला इस मामले के हवाले से जो है वो हमें कंसर्न रहेगा। और उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से अभी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात की जा रही है, हमें उस पर भी तसल्ली नहीं है। और उनका ये भी कहना था हमजा शहबाज शरीफ का साहिवाल सान्हे से मुताल्लिक कि हम उनके मुतासरीन से वो मिलने के लिए भी गए हैं, और उनका कहना था कि खुद उन के जो अहले खाना हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो भी मुतमईन नहीं है जिस तरह से अभी काम हो रहा है। और इतना बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन किसी की जानिब से, खासतौर पर कायदे ऐवान की जानिब से यहाँ आकर इस ऐवान को जो एतमाद में नहीं लिया गया। और इस तरह से इस वाक़े को हम किसी भी सूरत सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। हमजा शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो तसल्ली बख्श होनी चाहिए। कौम के सामने हकाइक रखना चाहते हैं तो आइए ऐलान करें और अपना जो है हकाइक का तयन हो और जिम्मेदार जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। ये कौम भी बड़ी बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रही है। 5 दिन हो गए इस वाक़े को, अब 5 दिन में जेआईटी बनी, जेआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई, आज इन कैमरा ब्रीफिंग हो गई, आप इतना मुतमईन नहीं है। क्या आप डिमांड करते हैं कि सूबे का जो लॉ मिनिस्टर है या सूबे का जो होम मिनिस्टर है, इतने बड़े वाक़े के हो जाने के बाद अब उसे स्टेप डाउन करना चाहिए? देखें, फिर मैं इस मामले में सियासत का उनसर नहीं लेके आना चाहता। खाई साहब, गुजारिश ये है कि पीछे सियासत होती रही, और कल अपना जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है वफाक में, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है मॉडल टाउन वाक़े पर कहते रहते थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ऑपोजिशन ये कहती है कि आप जेआईटी से अपना जो है ना वो हकाइक पर अपना जो है ना बात नहीं हो सकती है। जब जुडिशल कमीशन बनेगा, जिम्मेदारान का तयन होगा, उसके बाद फिर हम तकाजा करेंगे कि किसको जिम्मेदारी ठहराना चाहिए, किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लेकिन जेआईटी से वक्त का ज़या है और कौम की बेचैनी में इजाफा हो रहा है। साहब, ये बताइएगा, आपका लाए अमल क्या होगा? कौम को ये लग रहा है कि जिस तरह माजी में सानहे मॉडल टाउन पर इमरान खान सियासत करते रहे हैं, आप भी इसी तरह करें। क्या सानहे मॉडल टाउन की तरह सानहे साहिवाल के वुर्सा को इंसाफ मिलेगा? देखें, कमीशन भी बन जाता है, वो मामला अदालत में चल रहा है। और आपको याद है जिस दिन सानिया मॉडल टाउन रूनुमा हुआ था, राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफा दिया था। तो गुजारिश है कि मैं अपना जो है ना पास नहीं दोहराना चाहता। और मेरी बात एक और सुन लें, मेरी बात सुन लें आप। कौम जो है ना वो जानना ये चाहती है कि अगर मैं साहिवाल की बात करूंगा, हुकूमती बेंचेस से मॉडल टाउन की आवाज़ बुलंद होगी, यकीन मानिए कि कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी। देखें, इल्ज़ाम तराशी से
और वापसी जवाब से उन यतीम बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा और कौम जो है चाहती है कि हम इस वक्त हकाइक से पर्दा उठाएं और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सियासत को पीछे छोड़ देना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर उन बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके सामने उनके पूरे खानदान को गोलियों से भून दिया गया। उनका कहना है कि ऐसे पहलुओं से तहकीकात होनी चाहिए जिससे वाकई ये महसूस हो कि हुकूमत संजीदा है मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद पहुंच गए। सानिया साहिवाल पर वज़ीर आला पंजाब तफसीली ब्रीफिंग देंगे। उस्मान बुज़दार साहनी की तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह भी करेंगे। पुलिस इस्लाहात पर भी मशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इस सारे वाक़े पर साहिवाल वाक़े पर होने वाली जितनी भी तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त है उससे वज़ीर आज़म को आगाह भी करेंगे और इस सारे मामले के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने सानिया साहिवाल की तफ्तीश मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी कर दिया और जीआईटी के सरबराह को 4 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार शमीम ने आईजी पंजाब को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि ये बड़े जुल्म की बात है, बताया जाए कि पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। अदालत ने मामले को इंतहाई हसास करार देते हुए केस की मजीद समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और आईजी पंजाब को तंबीह की कि पूरे सूबे में इस तरह का वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। सुनाकर सेहत का अहवाल बता दिया, कहा सेहत ठीक और हौसले बुलंद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सानिया साहिवाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज को अवाम दुश्मन करार दिया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। मरियम नवाज दादी की हमरा बाप से मिलने पहुंच, मां ने बेटे को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। परवेज रशीद, तारिक फजल चौधरी समेत दीगर लीगी रहनुमा भी कायद से मुलाकात के लिए जेल गए तो नवाज शरीफ ने गालिब का शेर सुनाकर सेहत का हाल बताया। उनके देखने से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। फिर कहा सेहत बिल्कुल ठीक है और हौसले बुलंद हैं। जेल के कवानीन तमाम कैदियों को देते हैं, उन्हीं के तहत नवाज शरीफ साहब को भी अपना इलाज कराने की तमाम सहूलतें फराहम की जाए। हुकूमत को ये तंबीह है कि वो एक जालिमाना फैसले के नतीजे में जेल में तो मौजूद है, लेकिन यहाँ इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान का जमहूर जो है वो अगर आज जो खामोश है या उस तरह नहीं खुला, जब फटेगा तो फिर बहुत खराबी होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सानिया साहिवाल पर भी गहरे दुख का इजहार किया। कहा तस्दीक किए बिना बेगुनाहों का खून नहीं बहाना चाहिए था। चाहता हूँ सानिया साहिवाल की शफाफ तहकीकात हो। नवाज शरीफ ने ये भी मुतालबा किया, हुकूमत को चाहिए वो अवामी मुश्किलात के पेश नज़र मुल्तान मोटरवे फौरी तौर पर खोल दे। वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में जो किया वो उनकी पुरानी रविश है। नून लीग ने हमेशा कौमी असम्बली का माहौल ख़राब किया। वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि नून लीग ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में जो किया वो उनकी पुरानी रविश है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौमी असम्बली के माहौल को ख़राब किया। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने माजी से कुछ नहीं सीखा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द अमल में कहा, फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल असेंबली में खड़े होकर अवाम और गरीब दुश्मन बजट के खिलाफ पार्लिमानी तरीके से एहतजाज किया। इमरान साहब की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान नहीं किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग ने ना ही पार्लियामेंट पर लानत भेजी, ना ही पंजाब असेंबली पर हमला किया, ना ही साहिवाल को आग लगाई। आपकी इत्तलात के लिए आप उस जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं जो 2 साल से पार्लियामान से भाग रहे हैं और तनख्वाह और मुराहत भी लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने कहा कि फवाद चौधरी से मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरह पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजी, इमरान साहब की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान भी नहीं किया।
लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल केस साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 7 फरवरी तक की तौसीह कर दी गई। मुल्ज़िमान को रेफरेंस की साफ कॉपियाँ भी फराहम की गई। रमज़ान शुगर मिल्स केस में नायब प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। केस पर कार्रवाई 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ पेश न हुए। लाहौर से मज़ीद जाने की शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल केस की समाअत हुई। आपको अपडेट करें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 7 फरवरी तक की तौसीह कर दी गई है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। मियांवाली में यूसी चेयरमैन हजरात की डिप्टी कमिश्नर और सीईओ फाइनेंस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर जहाज चौक में खत्म हुई। रैली के शुरका ने डीसीओ और सीईओ फाइनेंस के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। अमीर अब्दुल्ला खान अपोजिशन लीडर जिला काउंसिल ने कहा कि अपनी हुकूमत के दौर में हम अजनबी हैं। दोनों अफसरों का रवैया पीटीआई चेयरमैन के साथ इंतहाई मनफी होता है। 31 जनवरी तक दोनों अफसरों का तबादला ना किया गया तो 1 फरवरी को बड़ा एहतजाज किया जाएगा। मियांवाली से आपको अपडेट करें। एहतजाजी रैली में पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर जहाज चौक पर खत्म हुई है। रैली के शुरका ने डीसी और सीईओ फाइनेंस के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका की जानिब से ये एहतजाज, इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट के रवैये के खिलाफ ये तहरीक की गई थी और इस एहतजाजी रैली में सीईओ फाइनेंस और डीसीओ के खिलाफ बैनर्स उठाए गए थे। अपडेट करें आपको अब तक की खबर के मुताबिक मियांवाली में यूसी चेयरमैन हजरात की डिप्टी कमिश्नर और सीईओ फाइनेंस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर जहाज चौक पर खत्म हुई। रैली के शुरका ने डीसी और सीईओ फाइनेंस के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब से। वहाब, बताइएगा इस एहतजाजी रैली के बारे में। जी, मुख्तलिफ यूसी से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के चेयरमैनों की जानिब से डीसीओ मियांवाली और सीईओ फाइनेंस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली है। एहतजाजी रैली पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली के शुरका ने डीसीओ और सीईओ फाइनेंस के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका ने जहाज चौक बंद करके एहतजाजी रैली से खिताब किया। चेयरमैनों का कहना है कि डीसीओ और सीईओ का रवैया इंतहाई मनफी होता है। दोनों अफसरान का 31 जनवरी तक तबादला ना किया गया तो 1 फरवरी को फिर एहतजाज करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, अपडेट कर रहे थे। वक्त बदला, हुक्मरान बदले, हुकूमत बदली नहीं। बदला तो वीआईपी कल्चर नहीं बदला। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में जाना है तो नए कानून पर अमल दरामद करना होगा। सादा तबीयत के मालिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पीटीआई की ओपन डोर पॉलिसी सिक्योरिटी के नाम पर रद्द कर दी। सीएम ऑफिस में दाखिले के लिए नया वीआईपी पीएसओ जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और पीटीआई के मेंबर्स दाखिले के लिए किसी चेकिंग एसओपी की ज़रूरत उन्हें नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि नया वीआईपी कल्चर लागू किया गया है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में जाना है तो इस नए कानून पर अमल दरामद करना होगा। मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा रूद से। रूबा, बताइएगा इस बारे में। से बड़ा दावा किया गया था कि वो आम आदमी के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। वो ऐवान वज़ीर आला आएँ और वहाँ पर बैठे स्टाफ को अपनी कंप्लेंट जो है वो रिकॉर्ड कराएं। इस हवाले से कंप्लेंट सेल भी बनाया गया था, लेकिन अब सिक्योरिटी के नाम पर एक मरतबा फिर वीआईपी कल्चर सामने आया है। सादा तबीयत के मालिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पीटीआई की ओपन डोर पॉलिसी को रद्द कर एसओपी नए जो है जारी करवाए हैं, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और पीटीआई के मेंबरान के अलावा कोई भी आम आदमी अगर जो है वो सीएम पंजाब से मिलना चाहता है तो उसको पुलिस सराज से गुजरना होगा। अपनी फरियाद के लिए पहले वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी और पीएसओ से रब्ता किया जाएगा। फिर पीएसओ जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर के जरिए आम शहरी की सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे और उसके बाद उनको ऐवान वज़ीर आला में दाखिले की इजाज़त बहुत बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। एक नजर डालेंगे कराची की सिटी काउंसिल में इस वक्त हंगामा आराई के मनाजिर आप देख सकते हैं। कराची के बल्दियाती नुमाइंदे इस वक्त बाहम दस्तो गिरेबा हैं। भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे को धक्के भी दिए जा रहे हैं। कराची की सिटी काउंसिल के इजलास में इस वक्त हंगामा आराई का सिलसिला जारी है। इस इजलास के दौरान अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह सिटी काउंसिल के इजलास में
हंगामा आराई हुई और कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है, हंगामा आराई का सिलसिला भी जारी है। कराची की सिटी काउंसिल का इजलास आज तलब किया गया था, लेकिन अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी गई। अपोजिशन की जानिब से हुकूमती बेंचेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और अब इस वक्त कराची की सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा आराई के मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन के अरकान वहाँ पर जमा है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। सरफराज, बताइएगा अपोजिशन की जानिब से किस बात पर एहतजाज शुरू किया गया? जी, अगर देखा जाए तो सिटी काउंसिल का इजलास इसी तरह की हंगामा आराई की नज़र होता आया है। सबसे कम इजलास होते हैं सिटी काउंसिल में और आज ये देखने में आया कि अपोजिशन की जानिब से जो करारदादों के ऊपर और जो वक्त नहीं दिया जाता अपोजिशन को, उसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन जो इस वक्त मच्छी बाजार का मंजर पेश कर रहा है, जबकि जो बल्दिया उज़्मा कराची के जो हुकूमती मेयर की जो जानिब से जो मेंबरान है उनकी जानिब से भरपूर जो है नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि मेयर की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो एहतजाज ना करें, बल्कि यही टाइम अवामी मसाइल हल करने। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी आपका।